Hello and welcome back to English Classes by Nitya Kapoor. So, today's class is a little different. We're not studying anything, but we're learning something. What we are going to learn is what are the problems that most of you all face while talking in English, like the fear that you have that you cannot talk in English. So, why do you have that fear? We're going to talk about that fear of public speaking, and we are going to talk about a lot of tips that can help you overcome that fear and speak English confidently. So first we'll reflect onto the things why this fear is there inside in you, and then we are going to learn seven tips to use that you can use so that you can train your brain to speak English confidently in public or wherever you wish to speak English. So let me just share my screen and we'll just start without wasting any more time. So you can see right here, why do you think I can't speak in English? Why do you think like that? So there could be multiple reasons for it. Maybe you have a fear of public speaking. Maybe you think that your vocabulary is not too good. Maybe you think that your pronunciation is not too good, or maybe you're just shy in general. So let's talk about it in detail. So first is you're shy and scared to speak in English. The first reason could be that you cannot speak in English is that you're shy or you're scared. You're shy because you're that kind of a person. That's okay. And you're scared to speak in English. You're scared to speak in English because you feel like your English is not perfect. You feel like your pronunciation is not perfect. You feel like your accent is not perfect, or you're not fluent enough, or whatever the reasons could be. Anything could be the reason why you're afraid to speak in English. Second reason could be when you have to speak in English, you forget all the words and grammar rules you need to use. तो ऐसा कभी कभी हमारे साथ हमारे एग्जाम देते टाइम होता है कि जब हमारे सामने हमारा क्वेश्चन पेपर आता है, हम पूरे ब्लैंक हो जाते हैं. होता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और आई एम श्योर बहुत बच्चों के साथ होता है, बिकॉज आई डील विद किड्स एंड एवरीथिंग, सो आई नो दिस कि ये होता है, बहुत बच्चों के साथ होता है. तो वैसे ही इंग्लिश के साथ होता है कि जब टाइम आता है इंग्लिश बोलने का, तो हम भूल जाते हैं सारे वर्ड्स, सारे ग्रामर रूल्स एंड एवरीथिंग, विच इज नॉट, बहुत सारे लोगों के साथ होता है. बट प्रैक्टिस से और आगे जो मैं चीजें बताने जा रही हूँ उससे, आप सही बता रही हूँ, आप इंग्लिश मास्टर कर सकते हो. Third, you get angry at yourself because you know English, but you keep forgetting all the words and rules. अब वही बात है, आपको गुस्सा आता है खुद पे कि यार मैंने पढ़ाई तो करी है, मैंने प्रैक्टिस भी करी है, मैं सब कर रहा हूँ, मैं सारे रिविजन कर रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, तो गुस्सा आना तो बनता है ना. तो आपको गुस्सा भी आ जाता है कि आप इंग्लिश में भी बात कर जाते हो, और फिर जब इंग्लिश में बोलने की बारी आती है तो आपको वही गुस्सा ध्यान आता है, तो आप फिर बोल नहीं पाते. And the last reason, according to me, could be you give up and stop learning and improving your English on daily basis. तो पहली बात तो प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलवेज रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो अगर आप गिव अप कर दोगे, अगर आप गिव अप ही कर दोगे, आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना बंद कर दोगे, आप रोज लर्न करना बंद कर दोगे, तो आप ऑब्वियसली नहीं सीख पाओगे. आप तो सीख नहीं पाओगे तो बोल नहीं पाओगे. तो डेली बेसिस पे इंग्लिश को पढ़ना, इंग्लिश को समझना, इंग्लिश को रीड करना, इंग्लिश को सुनना और नई नई चीजें सीखना, नई नई स्टोरी सुनना इंग्लिश में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. डेली प्रैक्टिस करना. गिव अप नहीं कर सकते. गिव अप कर दोगे तो क्या ही बचा. गिव अप कर दोगे तो कभी इंग्लिश सीख नहीं पाओगे. तो ये हमने डिस्कस कर लिए कुछ रीजन. अब कुछ भी रीजन हो, इसके अलावा भी आपका कुछ रीजन है कि आप हिंदी मीडियम में पढ़े हो, आप कभी इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े हो, बट अब आपको लगता है कि इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है बोलनी, अब सीख रहे हो बट अब नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि आपके में कॉन्फिडेंस नहीं है. वही है ना कि आप शाय हो या स्कैर्ड हो. कोई भी रीजन हो सकता है, बट हम उन रीजन को ओवरकम करेंगे और इंग्लिश बोलना सीखेंगे. सो the first tip that I want to give to all of you, so that you can train your mind, so that you can train your brain to speak in English confidently and fluently anytime, anywhere, is shadowing. Now, what is shadowing? Shadowing is when you listen to someone speaking in English and you repeat out loud everything that the speaker is saying. Okay, so when you are listening to someone who is speaking in English, you like their accent, you like the way they speak, you like everything about their English. So now what should your task be? Your task should be from now on is to learn from them. So how do you learn from them? When you try to intimate them. When you try to intimidate them. How do you intimidate them? By copying them.
So copy their accent, copy how they're speaking, copy how fluent they are, copy how gaps they give between the words and everything. So that's how you can learn from someone else. Learn them, read them properly, try to talk to them, always be around them, record them, and now practice practice those words, practice what they are saying. जो वो बोल रहे हैं उससे रिपीट करो, उन्हीं की टोन में, उन्हीं की इंटेंसिटी में, वहां जो वो गैप्स दे रहे हैं वर्ड्स के बीच में वो गैप दो, उनकी प्रोनाउंसिएशन को कॉपी करने का ट्राई करो, और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो ना उतनी करो। कोई भी एक ढूंढ लो, कोई ट्यूटर हो, कोई एक्टर हो, कुछ भी, कोई वेब सीरीज देख लो, उसको बीच में पॉज कर करके बार बार डायलॉग्स बोलो, सबटाइटल्स ऑन कर लो, कुछ भी करो, कोई इंग्लिश मूवी देख लो, कोई इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे हो, कुछ भी जो भी पसंद है उसको बार बार जो वो बोल रहा है अपने आप उसको रिपीट करना सीखो। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, इंग्लिश में और ज्यादा कॉन्फिडेंट होने का। अब देखो, जब आपको पता है कि आपको इसकी इंग्लिश पसंद है, मतलब उसको अच्छे से इंग्लिश बोलनी आती है, अगर आप उसके जैसे इंग्लिश बोल लोगे तो जो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है वो आपका अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप वैसे बोल रहे हो जैसी इंग्लिश एक्चुअली बोली जाती है और आप गलत नहीं बोल रहे हो। तो ये था मेरा फर्स्ट टिप। सेकेंड टिप, क्रिएट रोल प्ले सिचुएशंस or situations you may find yourself in the future and talk about these situations to yourself. Now, how do you have to talk about these situations in English? Now, the reason behind this tip is that जैसे कि आपने सुना होगा कि हम रिवीजन क्यों करते हैं। हम रिवीजन इसीलिए करते हैं ताकि जब हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आए हम उसको फटाफट से अटेम्प्ट कर पाए। और आपने ये भी सुना होगा कि हम अपने एग्जाम्स में वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं जो हमने पहले से करे होते हैं, हम वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो अब यही है इंग्लिश में भी, यहाँ पर भी मैं यही बोल रही हूँ कि जहां पर भी आपको फील होता है कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, कहाँ पर भी आपको कॉन्फिडेंस ड्रूप हो रहा है, तो आप उन वैसी सिचुएशंस को ना सोच सकते हो कि हो सकता है मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए, या फिर हो सकता है आपको पता है कि आपको कल इस बारे में कॉन्वर्सेशन किसी से करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, आप रोल प्ले सिचुएशंस अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हो, और आप इमेजिन कर सकते हो कि आप इस टाइम पे उस सिचुएशन में हो, और इस टाइम पे आप उस सिचुएशन में अगर आपको इंग्लिश में बात करनी है तो आप इंग्लिश में कैसे बात करोगे, हाउ विल यू टॉक एट दैट टाइम। So now you know that what kind of questions can come up, what kind of conversations can come up. You have the time to think over it. You have the time to make up your answers. You have the time to make up your arguments. You have the time to make up what you want to say. And when you do that, your brain will be familiar with how it has to act when that situation actually comes. So the next day, when you'll actually be in that situation, you'll understand, and it will not be completely new to you. It will not be completely foreign to you. You will know what to do. And when you know what to do, you are confident enough to do it. So that's the only reason why this creating role play situations can help you to improve your English and to speak English with confidence. Create as many scenarios as you can, create as many arguments that you can, create as many situations as you can, and practice them over and over, improve them over and over. Now, what things you need to focus on? Fluency, grammar, where you need to pay the gaps, how confident you need to be. These things are some major points where you need to focus on while you're imagining your situations or you're creating a role play situation. Okay. So, third tip. Third tip is talk in front of a mirror and recreate these situations so that you feel more comfortable speaking in English and looking at yourself speaking in English. So it's similar. It's very similar to this tip number 2, that create role play situations. But now, instead of doing this in your mind, you are doing this in front of a mirror. Now you are seeing yourself talking in English. When you see yourself talk in English, you will feel even more confident that you can talk in English. And when the situation comes, when the time of the hour comes, when you need to talk in English, you will be able to do that because you are able to do that right now in front of a mirror. अब कर लिया तो कल भी कर लेंगे, वही वाला सीन है. You'll just gain a lot more confidence than you had, because now you have seen yourself talking in English and you have also created the role play situations. तो अब आपको पता, अब आपने खुद को बोलते हुए देख भी लिया, आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर भी कर लिया.
तो हो जाएगा ना अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप। Tip number 4, record your voice. Give yourself feedback on your pronunciation and fluency by recording your voice and comparing your speaking skills to what you are shadowing. तो अब क्या, अब आपने जब अपने क्रिएट कर ली अपनी रोल पे सिचुएशंस एंड एवरीथिंग, अब क्या करो, अपने आप को रिकॉर्ड करो। अपने आप को रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना है, उसको सुनना है और फिर उसको जज करना है कि क्या मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, क्या मैं फ्लुएंट हूँ, क्या मेरे को सुनने में मैं कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ। आप ऐसे खुद को फीडबैक दो। और आप जिसको शैडो करने का ट्राई करे थे ना, जो हमारी फर्स्ट टिप थी शैडोइंग, कि किसी भी एक को पकड़ो जिसकी इंग्लिश आपको पसंद है और उसको रिपीट करते रहो, तो वो भी देखो क्या आप उसकी तरह साउंड कर रहे हो। तो खुद को खुद ही फीडबैक दो कि क्या जो आपका गोल है आप उसके कितने पास हो और कितनी दूर हो, ताकि आपको पता चले कि इसके बाद आपको अपनी इंग्लिश पर और कितना काम करने की जरूरत है। तो क्या करना है, अपने आप को रिकॉर्ड करना है और अपने आप को जज करना है ऑनेस्ट, कि आप कितने फ्लुएंट हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन कितनी अच्छी है, कितनी सही है, और आप कितने पानी। इसके बाद टिप नंबर 5, find someone to speak in English with. There is no better way to improve your English speaking skills than to be speaking to other English speakers. Find someone to speak in English and test if you are able to keep the conversation good. तो अब आपको क्या करना है, एक ऐसा इंसान ढूंढना है जिसको इंग्लिश आती है। पहले तो जिसको इंग्लिश आती है, कोई ऐसी मत ढूंढना ना जिसको इंग्लिश ही नहीं आती, उसके सामने परफेक्ट भगवान हो। तो कोई ऐसा इंसान ढूंढना जिसको इंग्लिश आती है, उसके साथ बात करना इंग्लिश में। ठीक है, उसके साथ बात करना इंग्लिश में, उसके जो स्पीकिंग स्किल्स होंगे ना, उसके स्पीकिंग स्किल्स को जज करना, और कुछ अगर अच्छा लग जाए तो उसको अपने में ले आना। ठीक है, और ऐसा करना कि आप देखना कि जब आप उससे बात कर रहे हो इंग्लिश में, तो क्या आप बहुत ज्यादा अटक रहे हो, क्या आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ रही है, क्या आप सेंटेंसेस पूरे फ्रेम कर पा रहे हो या नहीं, क्या आप उस कॉन्वर्सेशन को चला पा रहे हो या नहीं। तो इससे पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो अपने इंग्लिश लर्निंग की जर्नी में। ठीक है, तो टॉकिंग इन इंग्लिश, कन्वर्सिंग इन इंग्लिश इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल टिप, as like when you're conversing you're also practicing, and you're practicing it in a real life sense. So when you do that it makes a lot of difference. So try to converse as much as you can in English with other people who also know English. Next tip, learn from your mistakes. Mistakes are great to be making as you are really using your knowledge. It is important to make mistakes but also to learn from your mistakes so that you improve in the future. तो गलतियां कर रहे हो इससे डरना नहीं है, गलतियां कर रहे हो इससे मन खराब करके नहीं बैठना, गलतियां कर रहे हो इससे, इसका मतलब ये नहीं है कि गिव अप कर दो, पढ़ना छोड़ दो, सीखना छोड़ दो। गलतियों से सीखना कि मैंने यहाँ गलती की, मैंने ये वर्ड गलत प्रोनाउंस करा, मैंने यहाँ पर टेंस की गलती की, मैंने यहाँ ग्रामर की गलती की, ये गलती मैं बार बार कर रही हूँ। तो इन गलतियों को पकड़ना और इन गलतियों को सुधारना, करेक्शन करना। इम्प्रूविंग योर इंग्लिश मीन्स करेक्शन, correcting your English. Where and how will you correct your English? Well, you'll find your mistakes. When you'll find your mistakes, when you'll actually speak in English, when you'll actually converse in English, and when you will keep note. आप ध्यान रखो कि आप बार बार इस जगह पे गलती कर रहे हो, तो अब इस जगह पे क्यों गलती कर रहे हो। अगर आप बार बार टेंस में गलती कर रहे हो, तो आप टेंस में गलती कर रहे हो, तो अब आपका होमवर्क क्या होना चाहिए कि आप जाकर कहीं से सारा टेंस समझो, कोई यूट्यूब पे सर्च करो। मेरे पास वीडियोस है, पूरी टेंस की प्लेलिस्ट है, पूरे 12 के 12 टेंसेस मैंने डिटेल में करा रखे हैं, इतने सारे एग्जांपल्स के साथ हिंदी में समझाए हैं, वो देखो। या फिर कोई और यूट्यूबर पसंद है, वो देखो। आपके पास आपका कोई टीचर है, कोई हेल्पर है, उसको समझो, उससे समझो, कुछ भी करो। प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, प्रोनाउंसिएशन की वीडियोस देखो, स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस देखो, जहाँ पर लोग फोनिक समझा रहे हैं वो चीजें देखो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते करते चीजें जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आपको अपनी मिस्टेक्स पे काम कैसे करना है। बट आपको अपनी मिस्टेक्स तभी मिलेंगी जब आप बोलोगे, जब आप बोलोगे तो आपको अपनी मिस्टेक्स मिलेगी, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करना। ठीक है, अब हमारी लास्ट टिप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है।
और यही टिप है जो जिसकी वजह से जो लोगों को नहीं पता होती है, जो लोग समझ नहीं पाते, पता होती है बट शायद लोग समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से लोग गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग छोड़ते, छोड़ो यार मेरे बस का तो नहीं है, क्या ही करना है, छोड़ो ना। ठीक है। सो द टिप सेज, don't compare yourself with others. Everyone learns different and everyone expresses themselves differently. Only compare your progress from yesterday to tomorrow. तो खुद से कंपेयर मत करो, क्योंकि आपको किसी और की जर्नी नहीं पता। हो सकता है कोई 2 साल से इंग्लिश सीख रहा हो और आपने 2 हफ्ते पहले स्टार्ट करी हो, तो इट इज रियली अनफेयर टू यू कि आप उससे खुद को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है। क्योंकि वो 2 साल से सीख रहा है, उसकी 2 साल की मेहनत और आपकी 2 हफ्ते की मेहनत है। ठीक है। अब कोई है जो 2 साल से सीख रहा है बट वो बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं, वो महीने में एक बार सीखने आता है फिर छोड़ देता है, और कोई है जो पिछले 2 महीने से सीख रहा है बट वो रोज सीख रहा है, वो रोज पढ़ रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो लिख भी रहा है, वो बोल भी रहा है, वो अपनी गलतियों पे भी ध्यान दे रहा है, वो अपनी रिविजन भी कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। तो उसकी इंग्लिश बहुत बेटर होगी दैन जो 2 साल से पढ़ रहा है, ऐसी बीच बीच में जब भी उसका मन करता है उठा लेता है। ठीक है। तो कंपैरिजन कंपैरिजन मत करो। अगर कंपैरिजन करना है तो बस ये करो कि आप कल कहाँ थे और आप आज कहाँ हो। आपने इस 24 घंटे में क्या नया सीखा, आपने क्या नई इंप्रूवमेंट्स की, आपने अपनी क्या चीजों को और ज्यादा ब्रश अप करा, और आप कैसे आप कल से बेटर इंग्लिश आज बोल पाते हो, चाहे वो इतनी सी ही बेटर क्यों ना हो। ठीक है। तो सिर्फ अगर कंपेयर करना है तो आपको सिर्फ खुद से ही कंपेयर करना है, और किसी से कंपेयर नहीं करना। थैंक यू। तो ये कुछ 7 टिप्स थी जो मुझे लगता है बहुत हेल्प करेगी, जो मुझे हेल्प करती हैं अपनी इंग्लिश जर्नी में, जो मुझे लगता है कि आपको भी हेल्प करेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस नहीं देखी है, मैं बहुत सारी वीडियोस डालती हूँ, मेरी एक पूरी इंग्लिश से बेसिक इंग्लिश से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है, जिसमें अगर किसी को भी बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती उसको बहुत अच्छी इंग्लिश आ सकती है उस प्लेलिस्ट को देखकर। और मेरे पास टेंस की प्लेलिस्ट है, पूरे 12 टेंसेस मैंने बहुत डिटेल में करा रखे हैं। मैंने मैंने वो भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी करवा रखा है। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट, दे विल हेल्प यू डेफिनेटली डेफिनेटली। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको लगता है किसी और की इस वीडियो से हेल्प हो सकती है तो प्लीज उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा और मेरा चैनल शेयर करिएगा। और अगर आप कुछ इंग्लिश में कोई टॉपिक सीखना चाहते हैं या कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। Bye bye.